Hello friend, how are you? Welcome to Trilpan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? Nature of the state. There is the most important. They are part of India between AD 750 to the 1200. Their nature of the state here. The state structure is a period has often been to the described as a decentralized. Decentralized here is a political system. And what is a decentralized is a polity? There is a most important question here. What is a decentralized polity? It is a system in which there is of course, a king as the main authorities at the top. There is a king of the main authorities of top, but the share is a rule with the other small chiefs is called to federatrix or samantas. There is a most important. There is a today of the political party. You may be wonder how to the Samantas were. Well, the term of Samanta is basically referred to a king who has been to defeated, but his kingdoms has been restored to him. But there is a condition that will be a continue to accept the overlordship of the squarings, and the king also play a regular tribute to him as a cash or king. He may be also asked to the help with the military assistance and the time of need, as this chief enjoy the freedom of administrations over their regions and they are quite powerful. Surely you can guess that these chiefs could be be a threat to be a overlord, and no is a wonder is whenever there was a weak king at the top, and they would be assessed to their independent is a leadings to be a break up of the empire, and presumably it was that happened during the last day of the Pratihara empire as I mentioned above. Another aspect their decentralization politics was centralized by the practice of the making a land grant to the Brahmins and the other. This practice was initiated by the Satyavahans, the king in the 1st and 2nd century AD. But after the Gupta period, it has become a normally practiced all over the country. Now, land is a grant come to the made not only to be religious person and institutions, but to state officially as well. They did not so happen, and it is a suggest that one of the reasons for the increase in the land grant during this period and was the decline in the trade and therefore the storage of the coin money to pay the officially and other for their service. The shortage of the coin money in the post-Gupta period is indicated by their absence of the presence of coin in the archaeologically is a find. And the land is granted to this is a domes, and the receipt of grant was tax-free. There is a donors did or not pay of any tax to the state and used to the produce and the income on its form is officially is a man managing the land denoted by him. Thus this donors is there is a converted to the land granted to them into the dependent island of authorities with no or little center control. In the Chol kingdom in South India, the structure of administration was slightly different. And here at the village level as a great amount of autonomy was enjoyed by their local people. And they localized after their administrations with the help of the selected local bodies. And two types of village is assembly are the mentioned in the records. And these were to the known as the Sabha and the old is the Sabha. And the assembly in the village which were inhabited predominantly by the Brahmins, whereas was in the known Brahminical is a settlement, and this assembly looked after the local public work, tax collection, temple management, etc. With the help of the member elected through the produce set by their villagers, it was a unique feature of the Chol administration as the represented is the harmonious is a balance between the center authorities and the local self-government.
यहाँ पर देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया है शासन की प्रवृत्तियाँ। देखिए शासन की प्रवृत्तियाँ आप सोच रहे होंगे किसके अंतर्गत है, तो ये अंतर्गत है आपका 750 से लेके 1200 ईस्वी के मध्य भारत की जो है परिदृश्य, कि भारत का इस समय कैसा परिदृश्य था, कैसा था। तो इसमें हम शासन की प्रवृत्तियाँ भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं शासन की जो है तत्कालीन ढांचा प्रायः विकेंद्रीकरणित और राजनीतिक पद्धति के रूप में दर्शाया गया था। विकेंद्रिक तंत्र राजतंत्र क्या है? देखिए विकेंद्रीकरण होता क्या है आखिर, विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? कहते हैं अगर देखा जाए विकेंद्रीकरण वह प्रणाली है जिसमें निस्संदेह सर्वोच्च पद पर जो है राजा होता है, और किंतु वह अपना शासन जागीरदारों अथवा सामंतों जैसे उप प्रमुख्य की सहायता से करता है। जैसे आजकल के समय में भी आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है मुख्य शासक नहीं होता है, वहाँ प्रधानमंत्री होता है, उसका मंत्रिपरिषद होता है। जो प्रधानमंत्री जो है अपना मंत्रिपरिषद में शक्तियों को बांट देता है, और ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति का ही होता है। तो वहाँ पर जो है सारे के सारे कार्य जो होते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा निभाए जाते हैं। तो सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि निसंदेह सर्वोच्च पद पर जो है राजा ही होता है, किंतु वह अपना शासन जागीरदारों अथवा सामंतों जैसे उप प्रमुख के सहयोग से करता है। समान व्यवस्था के तरपत्य ऐसे शासक से था जो पराजित हो जाते थे, किंतु उनका राज्य उन्हें इस शर्त पर वापस मिल जाता था कि वो विजय राज्य की अधीनता स्वीकार करेंगे तथा उसके नगद तथा अन्य प्रकार के शुल्क की आपूर्ति भी रहेंगे, और आवश्यकता के समय वह सैन्य सहायता भी करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है समानता का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर समानता का साफ शब्दों में अर्थ ये होता है कि राजा जिस राजा पे विजय प्राप्त कर लेता है उसको जो है राज्य नहीं छीनता है, उसको राज्य जो है आपस लौटा देता है। लेकिन राज्य लौटाते समय कुछ शर्त रखी जाती है कि वो जो है मेन राजा जो है जो महाराज है उसको वो टैक्स देगा, और जो है समय समय पर जब पड़ेगा तब वो अपने शक्ति सैनिक को भी जो है राजा के हाथों सौंपेगा। तो इस सारी बातें के अंतर्गत जो है समानता आती है, क्योंकि ये समानता अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए स्वतंत्र होते थे। यानी ये नहीं है कि उनके ऊपर जो है किसी तरह के जो है प्रतिबंधित होते थे। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे अभी के समय में राजनीतिक में ये होता है कि हर क्षेत्र में जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री जो होता है अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र होता है हर एक डिसीजन के लिए। तो सेम वैसा ही था, लेकिन ये जो है सेंटर से ही चलाया जाता है। सेम यही कंडीशन कुछ देखने को उस समय भी हमें मिला था। कहते हैं क्योंकि ये समाज अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते थे, अंतर वो बहुत शक्तिशाली भी थे। अब अपना अनुमान लगा सकते हो कि ये जो है सरदार शासन के लिए खतरा भी हो सकते थे। कभी कभी ये खतरा भी होते थे, तो उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कभी कभी तो अगर कोई शासक मजबूत हो जाता था तो वो अपना जो है खुद को स्वतंत्र भी कर देता था। जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गुलामों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा कैसे बना लिया। दीदी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि दुर्बल शासक के समय ये बगावत का झंडा उठाकर अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर लेते थे, और ऊपर दिए गए प्रतिहार साम्राज्य के साथ यही हुआ था। यानी गुप्ता जो है वंश का जो है खत्मा इसी कारणों से हुआ था, और प्रतिहार वंश का भी जो है इसी तरह से जो है विघटन हुआ था, क्योंकि वो राजाओं को अधीन छोड़ देते थे, और ये राजाएं अपने आप को पावरफुल बना के राजाओं के प्रति जो है संघर्ष छेड़ दिया करते थे। विकेंद्रीकरण राज्य व्यवस्था का अन्य पहलू ब्राह्मणों तथा अन्य को जो है भूखंड दान करने की प्रथा में भी देखा जा सकता है। यानी उस समय जो था ब्राह्मणों को अधिक मात्रा में भूखंड दान से प्राप्त होता था, और इस परंपरा को जो है सातवाहन वंश के शासकों ने प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में आरंभ भी कर दिया था। यानी ये जो प्रथा चलाने का श्रेय किसको जाता है? सातवाहन वंश को। ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम में हमेशा रहता है। ये क्वेश्चन आपको जो है बुकों के अंदरों से ही मिलेगा, आपको एमसीक्यू के अंतर्गत नहीं मिल सकता है। किंतु गुप्त साम्राज्य के शासन के पश्चात तो यह संपूर्ण भारत में प्रचलन में आ गई थी। अब भूखंड का दान जो है मात्र धार्मिक व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि कुछ राजकीय अधिकारी को भी दिए जाने लग गया। देखिए भूखंड की जो बात थी वो सिर्फ पहले उस समय ब्राह्मणों के दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो राज्य करते थे उनको भी भू जो है देने लग गए। तो इसका मतलब था कि उनके पास जो है खजाना की कमी थी। इसके क्या कारण थे?
माना जाता है कि व्यापार में लगातार पतन की स्थिति ने इस काल में भूमि दान के करने की परंपरा जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय जो था धन की मात्रा बहुत कम गई थी और इस कंडीशन में जो है जागीर देना एक स्वाभाविक बात था, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य को उनकी सेवाओं का भुगतान करने के लिए मुद्राओं का अभाव चल रहा था उस समय। कहते गुप्तोत्तर काल में जो है प्राथमिक खोज में सिक्कों की उपलब्धता न होने से पता चलता है कि मुद्राओं का अभाव हो गया था। देखिए, जब यहाँ पर जो है बहुत से स्कॉलर ने जब यहाँ खोज किया तो इन्होंने पाया कि इस समय के दौरान कोई भी सिक्का का आविष्कार नहीं हुआ और कोई भी सिक्का चलाई नहीं गई। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि उस समय सिक्कों का अभाव हो गया था, जिस कारण से जो है इस समय जो है राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ही दुर्बल हो गया। दान में मिलने वाली भूमि का जो है मुक्त होती थी, यानी जो दान में मिलता था उसकी कोई कर नहीं लगाई जाती थी, अर्थात दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति शासन को कोई भी शुल्क अदा करने के लिए बाध्य नहीं होता था। जैसे आज के समय में जो मंदिरों में दान करते हैं, ठीक है, उनको जो है कर मुक्त कर दिया जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जिनको दान में मिलता था कोई भी राज्य, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। समझ गए ना? तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस भूमि का उपयोग किया करते थे, क्योंकि इसमें जो है टैक्स भी देना नहीं पड़ता था, इसलिए व्यक्ति जो था अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करता था। दान प्राप्ति करता दान की गई भूमि पर किसी भी शासकीय हस्तक्षेप से मुक्त, यानी कोई भी जो है शासक उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता था। इस प्रकार दान प्राप्त करने वाला दान में मिली भूमि को अपनी अधिकार में ले लेता था। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है। दक्षिण भारत में चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी भिन्न थी। कहते हैं ग्राम स्तर पर स्थानीय लोग जो है स्वशासन का आनंद उठाया करते थे। स्वयं द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहायता से वह अपने शासन की देख रेख भी किया करते थे। यानी उस समय जो है लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता था, जैसे हमारे आज के समय में होता है। यानी आपके द्वारा किसी व्यक्ति को आप चुनते हो, जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो, ठीक है, और उसके द्वारा ही शासन किया जाता है और देख रेख किया जा करता था। अभिलेखों में दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होती है, वो थे सभा और उर। ब्राह्मणों द्वारा जो है वंशागत रूप से शासित ग्रामों की समितियों की सभा कहा जाता था, जबकि गैर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली समितियां जो है उर कहलाती थी। ये समितियां ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित प्रणाली के तहत निर्वाचित सदस्यों की जो है सहायता से जन कल्याणकारी कार्य कर संचार तथा मंदिर प्रबंधन जैसे कार्य के लिए उत्तरदायित्व का ये निर्वाह किया करते थे। यह चोल शासन की एक अनुपम विशेषता थी, क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता तथा स्थानीय स्वशासन के बीच बेहतर संबंध का पता हमें चलता है।